Hello everyone, welcome back to our scheme segment, and today we are going to discuss Ministry of Housing and Urban Affairs scheme. I know Ministry of Finance schemes are pending, and I've been saying after every video that now we will cover Ministry of Finance schemes, but now I promise to cover Ministry of Finance scheme after Ministry of Housing and Urban Affairs scheme. So I'm really sorry for that, but for now let's start with Ministry of Housing and Urban Affairs scheme. So we have already completed Ministry of Agriculture schemes, Ministry of Rural Development schemes, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying scheme, and also Ministry of MSME schemes. Now we are going to cover Ministry of Housing and Urban Affairs scheme, then Ministry of Finance schemes. Also, I have read your recommendations that I have asked on Telegram for you to suggest me which schemes to cover next. So I have got an idea of which ministries are more there, important one to cover. So we will go ahead with some important ministries then and there too. So for now, let's start with Ministry of Housing and Urban Affairs schemes. In this class, we are going to cover 5 different schemes, that is Day NULM, that is Deen Dayal Upadhyay Antyodaya Yojana National Urban Livelihood Mission, then Pradhan Mantri Awas Yojana Urban 2.0, then Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation Amrut and Amrut 2.0, then Pradhan Mantri Swanidhi scheme or Yojana, that is updated part we are going to cover, then Swachh Bharat Mission Urban and Swachh Bharat Mission Urban 2.0. So we are going to cover with all the latest details, and in detail we are going to cover all these 5 different schemes in a complete holistic manner. So let's start with Deen Dayal Upadhyay Antyodaya Yojana National Urban Livelihood Mission. So first of all, what is this scheme? इस स्कीम में है क्या? What is the component and what does this schemes do? कब ये launch हुई? First of all, let us understand that part. So this scheme was launched in the year 2013 as NULM. First of all, remember this part कि इसका पहले नाम NULM था, that is National Urban Livelihood Mission. But उसके बाद 2016 में इन रिमेम्बरेंस ऑफ दीन दयाल उपाध्याय जी हमने इसका नाम दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदया योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन रख दिया गया. नाउ दिस इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब सेंटर एंड स्टेट बोथ आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द कॉन्ट्रीब्यूशन. ऑब्वियसली दिस वुड बी अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अगर आप ऐसे सोचें, बिकॉज दिस स्कीम इज़ टू एड्रेस urban poverty, and urban poverty cannot be addressed without support of state governments. So because India is a federal country and kyunki urban poverty is in the domain of state government, this has to be a centrally sponsored scheme क्योंकि states का भी बहुत important role है in reducing urban poverty. नाउ व्हाट इज़ दिस स्कीम अबाउट? ये स्कीम क्या कर रहा है, ये स्कीम में क्या कंपोनेंट्स है, एंड ये एक्चुअली स्कीम लाई क्यों गई थी, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग दिस स्कीम? सो दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदया योजना was नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन ऑब्वियसली. सो दिस was brought to reduce urban poverty, क्योंकि उस टाइम देखा गया in 2011 that there is so much of urban poverty and there is no such scheme that addresses all the problem of urban poverty की जो स्किल भी प्रोवाइड करे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, अर्बन पॉवर्टी को एड्रेस करे, स्ट्रीट वेंडर्स को कुछ प्रोविजंस हो. स्वानिधि scheme came in 2020, that's much later for street vendors, but in 2011 also it was thought कि कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है जो कि एम्प्लॉयमेंट के लिए, स्किल ट्रेनिंग के लिए या अर्बन पॉवर्टी को एड्रेस करती हो. सो दिस स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस विद द ऑब्जेक्टिव कि हम अर्बन पॉवर्टी को रिड्यूस करेंगे बाय प्रोवाइडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्किल बेस्ड वेज एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल्सो शेल्टर, सोशल सिक्योरिटी, लाइवलीहुड सपोर्ट. तो विथ अ very diverse objectives, this scheme was launched but with only one aim, that is to reduce urban poverty. तो इसमें urban poor included थे, including street vendors, urban homeless. Now implementation was in all district headquarters, all statutory towns with population more than 1 lakh people. यानी ये यहाँ पर सारे statutory towns covered थे जिनकी population 1 lakh के ऊपर है. सो आपको ये याद रखना है. Now बिकॉज इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी इसका जो शेयर था वो कैसे डिवाइडेड है? इन नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट इट इज़ डिवाइडेड इनटू 90:10, फॉर यूटीज़ 100% एंड अदर जनरल स्टेट्स के लिए इन द रेशियो 60:40. नाउ ये स्कीम जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, कई बार देखते हैं तो बहुत कन्फ्यूजन होता है व्हाट इट इज़, क्या कंपोनेंट्स हैं,
एंड आज की क्लास में हम वो सब क्लियर करने वाले हैं. दिस स्कीम इज़ बेस्ड आउट ऑफ 7 components. बिकॉज दिस स्कीम वॉज ब्रॉट आउट टू एड्रेस अर्बन पोवर्टी. तो 7 components में स्कीम को डिवाइड किया गया कि हम कैसे अर्बन पोवर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू डोंट हैव टू रिमेंबर दीज 7 components. हम जो डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट. बट दिस इज़ फॉर यू टू अंडरस्टैंड वॉट डज द स्कीम इज एक्चुअली डूइंग. सो फर्स्ट कॉम्पोनेंट वॉज सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट. यानी सबसे पहले अगर हमें अर्बन पोवर्टी को रिड्यूस करना है, सो इट वॉज थॉट लेट अस ऑर्गेनाइज पुअर्स इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फेडरेशंस, सो दैट उनका एम्पावरमेंट अपने आप होगा. अगर वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में हम वुमेन को इंक्लूड करेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में बनाएंगे, तो उन्हें लोन्स मिलेंगे, बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, उनका मोबिलाइजेशन होगा, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट होगा. सो फर्स्ट लेट अस ऑर्गेनाइज पुअर इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. सेकेंडली, इट वॉज थॉट कि वी शुड ऑल्सो प्रोवाइड देम स्किल ट्रेनिंग. अगर उन्हें स्किल ट्रेनिंग मिलेगी तो उनका एम्प्लॉयमेंट होगा, प्लेसमेंट होगा, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है. सो ऐसे हम अर्बन पोवर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं. सो सेकेंडली, इट वॉज थॉट कि हमें स्किल ट्रेनिंग देनी चाहिए. थर्डली, इट वॉज थॉट कि वाई नॉट गिविंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, यानी लोन्स देते हैं, इंटरेस्ट सबवेंशन देते हैं, ताकि उन्हें अगर माइक्रो इंटरप्राइजेस शुरू करना है सो दे कैन ईजिली स्टार्ट देयर माइक्रो इंटरप्राइजेस. फोर्थली, इट वॉज थॉट कि हम अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स को भी सपोर्ट देते हैं, उनको आइडेंटिफिकेशन, ID कार्ड्स, क्रेडिट, उनकी ट्रेनिंग, उनके वेंडिंग जोन्स. सो वी शुड डू ऑल ऑफ दैट ऑल्सो, बिकॉज अर्बन एरियाज़ में अगर हमें अर्बन पोवर्टी रिड्यूस करनी है, सो वी ऑल्सो हैव टू एड्रेस अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स. Then fifthly, it was thought that we should also provide shelter to urban homeless, because there are many homeless people in urban areas, and if we will provide shelter to them, then also we can reduce poverty at some level. Now next, it was thought that we should also provide training for institutions, staff, NGOs, self-help groups, and lastly, it was thought that we should also start pilots, innovative livelihood solutions, city level experiments, अगर हमें urban level poverty को reduce करना है. So these all things were thought when the scheme was launched. So with 7 components, this scheme was launched, that is National Urban Livelihood Mission, Deen Dayal Upadhyay Antyodaya Yojana for urban areas. Now let us understand कि each component में क्या help provide की गई. What they were telling कि हमको self help groups में लोगों को लेकर आना है, तो उसके लिए वो कितना funds दे रहे हैं, कितना support दे रहे हैं. This is a thing जो आपको इस क्लास में याद रखना है for this mission, because this is a very important mission. भले ये लॉन्च हुआ है 2011 में, 2016 में, any time, but it becomes still relevant to learn in 2025 because it's a flagship scheme and it is very important for you to remember. Now I hope you have understood from the starting that it was launched in 2013, renamed 2016. Then it included all urban poor, street vendors, urban homeless, and all the district with all the statutory towns with population more than 1 lakh people. Then share we understood, and we understood कि इस स्कीम को क्या सोच कर लेकर आया है, and when they bought this scheme तो उन्होंने क्या components को इस स्कीम में इंक्लूड करा है. Now we are going to start with each component and what in each component they thought and provided funds for. So first component we read was that they will provide social mobilization and institutional development. मतलब उनका गोल है कि एटलीस्ट एक मेंबर जो है अर्बन पुअर हाउस होल्ड से, प्रेफरेबली वो वुमेन होनी चाहिए, उनको हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर लेकर आएँ. बिकॉज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विल डू वॉट, दे विल एम्पावर वुमेन, एंड एम्पावर के बाद मोबिलाइजेशन, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट. सो दैट इज़ वाई दे वर वॉन्टिंग टू ब्रिंग at least one member from each poor household into self-help groups. Self-help groups के बाद आते हैं, actually this is a chain, self-help groups के बाद आते हैं urban सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बाद आते हैं एरिया लेवल फेडरेशन, दैट इज़ ALFS. कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जैसे कि 10, 15, 20 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मिला लेंगे तो एक एरिया लेवल फेडरेशन बनेगा. देन एरिया लेवल फेडरेशन के बाद आते हैं सिटी लाइवलीहुड सेंटर्स. सिटी लाइवलीहुड सेंटर्स यानी कि पूरा सपोर्ट जब रहता है मार्केट का, एवरीथिंग का सपोर्ट, जब हम बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं, सो तो दैट इज़ सिटी लाइवलीहुड सेंटर्स. तो नाउ दिस इज़ एन इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर कि पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होंगे, देन एरिया लेवल फेडरेशंस, एंड देन सिटी लाइवलीहुड सेंटर्स. तो नाउ फंड्स वुड बी गिवन एट ऑल दीज 3 levels. First of all, for self-help groups formation के लिए 10,000 rupees is given. So just remember 10,000 rupees for formation of self-help groups and hand-holding support up to 2 years. उसके बाद training of members, bank linkages and federation building.
बट सपोर्ट इज़ ऑफ 10,000 रुपीज़ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. नाउ रिजॉल्विंग फंड हमने सब यहाँ बात कर लिया 10,000 रुपीज़, बट यहाँ पर एटलीस्ट 70% से ज़्यादा जो मेंबर्स हैं दे शुड बी पुअर मेंबर्स, बिकॉज व्हाट इज़ आर एम इज़ कि हम हर अर्बन पुअर हाउस होल्ड में से एटलीस्ट एक मेंबर को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में लेकर आएँ. सो आर मिशन वुड फेल अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में अर्बन पुअर्स ही नहीं है. सो एटलीस्ट 70% मेंबर्स शुड बी अर्बन पुअर्स एंड 10,000 रुपीज़ का रिजॉल्विंग फंड वी आर गिविंग. नाउ फॉर एरिया लेवल फेडरेशन 50,000 rupees per area level federation is given. So 50,000 rupees, just remember, for area level federations. उसके बाद now city level centers would also be established ताकि जो cities है वो centers बने support provide करने का, livelihood support provide करने का. Because what is ultimate aim in our this scheme, हमको cities को empower करना है, urban poors को हमें help करना है. So city livelihood centers बनाने पड़ेंगे. तो now इस city livelihood centers के लिए grant दिया जाएगा of rupees 10 lakh rupees and that would be released in installments. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग नाउ कि सपोर्ट किस लेवल पे दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है, एंड व्हाट इज द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर. फर्स्ट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, देन एरिया लेवल फेडरेशंस, कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मिलाकर, एंड देन एट अ वाइड लेवल देयर आर सिटी लेवल सिटी लाइवलीहुड सेंटर्स. तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए एटलीस्ट 10,000 रुपीज़ का लाइवलीहुड सपोर्ट, जिसमें 70% अर्बन पुअर्स है. उसके बाद एरिया लेवल फेडरेशन के लिए 50,000 रुपीज़ और सिटी लाइवलीहुड सेंटर्स के लिए ग्रांट दिया जा रहा है ऑफ रुपीज़ 10 लाख. Okay, now we understood first component and let us move to our second component. Second component है कि हमें स्किल ट्रेनिंग भी देनी है सो दैट दे कैन एम्प्लॉयमेंट, उनको प्लेसमेंट मिले. अगर हम स्किल ट्रेनिंग देंगे दैट इज़ अलाइंड विथ मार्केट डिमांड, इट विल हेल्प अर्बन पुअर. सो आर सेकेंड कॉम्पोनेंट इज प्रोवाइडिंग स्किल ट्रेनिंग. नाउ इन स्किल ट्रेनिंग व्हाट इज द सपोर्ट गिवन? स्किल ट्रेनिंग में 15,000 रुपीज़ पर पर्सन इज गिवन इन जनरल स्टेट्स एंड 18,000 रुपीज़ पर पर्सन इज गिवन इन नॉर्थ ईस्टर्न एंड जम्मू एंड कश्मीर रीजन, ताकि हम प्लेसमेंट असिस्टेंस का सपोर्ट प्रोवाइड कर सके. उनको स्टाइपेंड भी देना है ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ताकि क्या हो सके, उन्हें वेज एम्प्लॉयमेंट मिले या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिले थ्रू स्किल्स, उनको प्लेसमेंट मिले. बिकॉज दिस विल फुलफिल आवर अल्टीमेट एम दैट इज़ टू रिड्यूस अर्बन पुअर्स. So because we want to reduce urban poors and this is our aim, so that is why we are providing skill training, and in skill training we are providing support 15,000 rupees and 18,000 rupees. Right, now our third aim is promote self-employment by supporting micro enterprises. Now we also want to support micro enterprises because ultimately supporting micro enterprises will promote self-employment and will also promote employment and help in reducing urban poors. तो उसके लिए हम लोन एंड इंटरेस्ट सबवेंशन देंगे. Now Allahabad Bank developed पैसा पोर्टल in 2018. जस्ट रिमेंबर दिस कि अलाहाबाद बैंक ने 2018 में पैसा पोर्टल को डेवलप किया सो दैट इंटरेस्ट सब्सिडी जो है वो डायरेक्टली इस पोर्टल के थ्रू बैंक्स को दी जा सके. सो दिस पोर्टल वाज डेवलप्ड. नाउ व्हाट वुड बी द लोन गिवन फॉर सेटिंग अप माइक्रो एंटरप्राइजेस. अगर इंडिविजुअल इंटरप्राइजेस को सेटअप करना है माइक्रो एंटरप्राइजेस, देन लोन अप टू 2 लाख रुपीज़ वुड बी गिवन. इफ ग्रुप एंटरप्राइजेस आर वांटिंग टू सेटअप माइक्रो एंटरप्राइजेस, देन लोन्स अप टू 10 लाख रुपीज़ वुड बी गिवन. एंड नाउ जस्ट प्लीज ऑल्सो रिमेंबर कि एटलीस्ट 30% बेनिफिशरीज अंडर दिस कॉम्पोनेंट दैट इज स्किल ट्रेनिंग एंड अंडर दिस कॉम्पोनेंट दैट इज a self-employment program, at least 30% beneficiaries women should be there so that women empowerment also happens. So 30% beneficiaries women भी होनी चाहिए and this was a component for micro enterprises. नाउ आवर फोर्थ कॉम्पोनेंट इज कि हमें अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स को भी सपोर्ट करना है. सो इट वॉज सेट कि जो 5% टोटल बजट होगा ऑफ दिस मिशन, इट वुड बी ईयर मार्क्ड फॉर स्ट्रीट वेंडर सपोर्ट, और उन्हें सपोर्ट दिया जाएगा फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिफिकेशन एंड इशुएंस ऑफ ID कार्ड्स, देन ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट ऑफ वेंडिंग जोन्स, देन एक्सेस टू क्रेडिट सपोर्ट, एंड नाउ इट हैज़ बीन लिंक्ड टू PM Swanidhi scheme that we are going to read later. So please understand 5% budget is earmarked for street vendor support. Now fifth component is providing shelter for urban homeless because there are many homeless people also in urban areas. So aim was to provide them permanent shelters ताकि कोई भी urban poor बिना roof के ना सो पाए. So shelter के specifications है such as each shelter must cater to 50 to 100 persons, यानी हर shelter में at least 50 to 100 persons होनी चाहिए. There should be facilities such as water, sanitation, kitchen, healthcare, skill development and recreation. So please remember कि हर shelter में 50 to 100 persons should be there and this was also one of the component
under this mission, right? Now our sixth component was that we also want to strengthen institutions and staff to implement mission effectively. So हमें ट्रेनिंग देनी है SHG members को, ALFs को, यानी कि एरिया लेवल फेडरेशन, देन सिटी लेवल फेडरेशंस, NGOs, रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशंस, एवरीथिंग. तो इसमें ट्रेनिंग, एक्सपोजर, विजिट्स, हैंड होल्डिंग सपोर्ट, एवरीथिंग वॉज प्रोवाइडेड. नाउ सेवेंथ कंपोनेंट वाज इनोवेशन एंड स्पेशल प्रोजेक्ट्स. इसका मतलब है हम चाहते हैं कि इनोवेशन को हम एनकरेज करें इन लाइवलीहुड मॉडल्स. सो सम पायलट प्रोजेक्ट फॉर पॉवर्टी रिडक्शन वर ऑल्सो टेकन, जैसे कि डिजिटल लिटरेसी का प्रोग्राम, ग्रीन जॉब्स क्रिएट करना, अर्बन फार्मिंग, हाउसिंग लिंक लाइवलीहुड, ये सब भी करा गया, राइट. नाउ दिस इज ऑल विद दिस रिस्पेक्ट टू दिस स्कीम, जिसमें जो आपको याद रखना है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्कीम एंड नाउ देर इज नो कन्फ्यूजन लेफ्ट विद रिगार्ड टू दिस स्कीम. एंड नाउ वी कैन मूव ऑन टू आवर सेकेंड स्कीम, दैट इज प्रधानमंत्री आवास योजना. And majorly we are going to read about Urban 2.0 because it is recently launched in 2024, so it becomes very important for us to understand. प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0. सो व्हाट डज इट सेज, ये बोल रहा है कि द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी has approved Pradhan Mantri Awas Yojana Urban 2.0. This ambitious mission aims to construct 1 crore houses. यानी प्लीज़ अंडरस्टैंड एम कितना है, टू कंस्ट्रक्ट 1 crore houses for urban poor and middle class families over next 5 years. So 5 years का target है to construct 1 crore houses. Now what would be the investment? Investment would be 10 lakh crore rupees. So this is also important to remember. Investment would be 10 lakh crore rupees and government subsidy is 10 lakh crore में से government subsidy होगी 2.3 lakh crore rupees. So this is an important part to remember, right? Now this is given here कि this scheme was approved by Union Cabinet on 9th of August 2024 and it commenced on 1st of September 2024 with duration of 5 years, that is 2024 to 2029. The vision is housing for all and the scheme aspires to support 1 crore urban poor and middle class families via financial assistance up to 2.5 lakh rupees per unit. Now this financial assistance I'll explain you in later slides, so please don't worry, we will understand कि financial assistance जो है up to 2.5 lakh पर यूनिट कैसे है. बजट एलोकेशन इज 10 लाख करोड़, जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी है 2.3 लाख करोड़. द क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड कॉर्पस हैज ऑल्सो ट्रिपल्ड फ्रॉम 1000 करोड़ टू 3000 करोड़ टू सपोर्ट अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स. सो दिस इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर दिस कि जो क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड का जो कॉर्पस है उसको ट्रिपल कर दिया है. फर्स्टली इट वॉज 1000 करोड़ रुपीज़ एंड नाउ इट हैज़ बीन मेड टू 3000 करोड़ रुपीज़, ताकि हम अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स को सपोर्ट कर सकें. What is the scope and vision? So scope and vision is providing financial support to urban families ताकि new houses को construct करा जा सके, purchasing new house and rent affordable homes. Focus is on improving quality of life by ensuring a pakka house for every urban family. Now, what is the eligibility criteria? This scheme is open to families belonging to EWS, that is economically weaker sections, then LIG is low income group, and MIG is middle income group. Segments who do not own a pakka house anywhere in the country. और इनके इनकम क्राइटेरियाज एलिजिबिलिटी ये है, दिस यू हैव टू रिमेंबर. इफ़ EWS हाउस होल्ड्स की एनुअल इनकम इज़ अप टू 3 लाख रुपीज़, LIG हाउस होल्ड्स इफ एनुअल इनकम इज़ 3 लाख टू 6 लाख रुपीज़, एंड MIG हाउस होल्ड्स जिनके एनुअल इनकम इज़ 6 लाख रुपीज़ टू 9 लाख रुपीज़. नाउ व्हाट आर की कंपोनेंट्स अंडर दिस? फर्स्ट इज बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, यानी कि फाइनेंशियल एड दिया जाएगा टू EWS फैमिलीज टू बिल्ड न्यू हाउसेज ऑन देयर लैंड एंड स्टेट एंड यूटीज उनको लैंड पट्टास भी दे सकते हैं टू लैंडलेस बेनिफिशियरीज. सो फाइनेंशियल एड वुड बी गिवन कि अगर उन्हें हाउसेज कंस्ट्रक्ट करने ऑन देयर ओन लैंड. नाउ सेकेंड इज अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप. सो हाउसेज जो पार्टनरशिप में बनेंगे विद स्टेट्स या अर्बन लोकल बॉडीज़ या पब्लिक एंड प्राइवेट एजेंसीज, सो दैट आर अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप. तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रांट वुड बी गिवन ऑफ 1000 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर फॉर प्रोजेक्ट्स यूजिंग इनोवेशन बिल्डिंग मैथड्स. तो प्लीज़ रिमेंबर कि जो TIG है, दैट इज टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रांट, वो कितना दिया जाएगा? दैट वुड बी 1000 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर दैट द प्रोजेक्ट्स फॉर द प्रोजेक्ट दैट वुड बी बिल्ट using innovative methods.
नाउ थर्ड कंपोनेंट इज अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग. तो जो वर्किंग वुमेन है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स है, माइग्रेंट्स हैं, होमलेस है, उनके लिए अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग वुड बी बिल्ट अप एंड दिस वुड बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एग्जिस्टिंग वेकेंट गवर्नमेंट फंडेड हाउसेज, या कंस्ट्रक्ट करेंगे हम न्यू रेंटल यूनिट्स. राइट, सो दिस इज अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग. तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रांट होगा 3000 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर फॉर प्रोजेक्ट्स विद इनोवेशन टेक्नोलॉजी. तो यहाँ पर जो TIG था दैट इज़ 1000 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर इन अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, एंड इन अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग इट इज़ 3000 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर. नाउ व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट सब्सिडी? 4% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी ऑन होम लोन्स अप टू 25 लाख रुपीज़, बट मैक्सिमम सब्सिडी जो मिलेगी दैट इज़ ऑफ 1.8 लाख रुपीज़. यानी 4% सब्सिडी मिलेगी अप टू 25 लाख रुपीज़, बट वो भी मैक्सिमम हो सकती है अप टू 1.8 लाख रुपीज़. दिस इज़ एप्लीकेबल टू EWS, LIG एंड MIG फैमिलीज, एंड सब्सिडी इज़ गिवन इन 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स. यानी 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में सब्सिडी को रिलीज़ किया जाएगा. यूजुअली इंस्टॉलमेंट्स 3 होती हैं, हेयर इट इज़ 5, सो प्लीज़ रिमेंबर इट इज़ 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स जिसमें सब्सिडी को रिलीज़ किया जाएगा. Now let us talk about funding pattern. So first let me take you to this table, and so that you will easily understand what are the funding patterns under this scheme. So North Eastern region, Himachal Pradesh, Uttarakhand and also UTs of Jammu Kashmir, Puducherry and Delhi. यानी जो ये सारे regions हैं, that is Northeast, Himachal Pradesh, Uttarakhand. Also we are including 3 UTs, that is Jammu Kashmir, Puducherry and Delhi. Please highlight and understand, यहाँ पे हम 3 UTs को भी include कर रहे हैं because all other UTs is another component. तो यहाँ पर हम 3 UTs को include कर रहे हैं, that is Jammu Kashmir, Puducherry and Delhi. So यहाँ पर coverage क्या होगा? In the first slide we learned कि जो maximum coverage होगा that is of 2.5 लाख रुपीज़ by the central government, right? तो अब कैसे assistance divided होगा? तो अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न और ये जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, दिल्ली की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल गिव 2.25 लाख रुपीज़ पर यूनिट एंड स्टेट गवर्नमेंट विल गिव मिनिमम 0.25 lakh rupees per unit. So here central will give 2.25 lakh rupees and state will give 0.25 lakh rupees per unit. But अगर बाकी सारी UTs की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट will give 100% support, that is 2.5 lakh rupees per unit. Now if we talk about remaining states, तो remaining states में central government will give 1.5 lakh rupees and state government will give minimum 1 lakh rupees per unit. नाउ दिस इज़ सेम एज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो फंडिंग शेयर का पैटर्न बताया था. हेयर इट इज़ 90:10, हेयर इट इज़ 100% एंड हेयर इट इज़ 60:40. सो हेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैक्सिमम 2.5 लाख रुपीज़ है, तो हाउ मच द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग. नाउ टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रांट, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ गिविंग 3000 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर पर यूनिट एंड स्टेट विल गिव 2000 रुपीज़ पर स्क्वायर पर यूनिट. तो प्लीज़ रिमेंबर दिस पार्ट ऑल्सो. लेट मी जस्ट इरेज this part so that there is no confusion left. So technology innovation grant, government will give 3000 rupees per square per unit and state will give 2000 rupees per square meter per unit. Home subsidy is maximum 1.8 lakh rupees and the interest subvention that will be received is 4% interest subsidy up to 25 lakh rupees. Now here same things are written that I have told you in the table. Now these are 2 MCQs that I would want you to solve. Please pause the video, please answer them either in the comment section or in Telegram discussion group, wherever I'll provide you the answers. Please solve these 2 MCQs that we have discussed with respect to this scheme discussed above. Now let us move to our third scheme, that is Amrut and Amrut 2.0. Because 10 years of Amrut has been completed, so Amrut becomes very important for us to understand. Amrut was launched in the year 2015 and it is 2025. So Amrut has completed 10 years and therefore Amrut also becomes important for us to study. Now let us study Amrut. So India is celebrating 10 years of Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation. Amrut का full form क्या है? That is Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation. Now what is this mission about? Because we are reading about Ministry of Housing and Urban Affairs, so the mission will relate to cities only. So now this was a mission कि हमें quality of life को improve करना है in cities. So Amrut mission was launched on June 25th, 2015 and the mission aimed to provide basic services जैसे water supply, sewerage, urban transport and parks. So for this support mission was launched Amrut on 25th of June 2015 and now 10 years have been completed of this scheme.
Now the objective was to provide basic infrastructure in 500 cities, and focus was on universal coverage of water supply and sewerage along with improving quality of urban life. 500 cities were covered based on population, कि जो population, जिन cities की population 1 लाख people से ज़्यादा है उनको हमने cover किया था. सारी capital cities of states and UTs and some special cities of cultural and strategic importance were covered under this Amrut scheme. Then Amrut 2.0 was Amrut 2.0 was launched on 1st of October 2021. तो अभी भी अमृत 2.0 इज़ एन ऑनगोइंग स्कीम. 2021 से 2026 का इसका टाइम पीरियड है. द टोटल आउटले वॉज is actually 2.99 lakh crore. That's a huge outlay that is provided to Amrut 2.0, that is 2.99 lakh crore rupees. Now यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है, जब अमृत वॉज लॉन्च तो इट वॉज एक्चुअली लॉन्च फॉर 500 सिटीज़ एंड जो हमने देख लिया है ये इस क्राइटेरिया पे बेस्ड होकर इस स्कीम को 500 सिटीज़ के लिए लॉन्च किया गया. बट नाउ 100% कवरेज इज़ गिवन टू वाटर सप्लाई टू ऑल हाउस होल्ड्स, यानी कि अराउंड 4700 अर्बन लोकल बॉडीज़. 100% सीवरेज और सेप्टिक कवरेज इन 500 अमृत सिटीज़. देन रिसाइकल एंड रीयूज वाटर मीट 20% ऑफ टोटल वाटर नीड्स एंड 40% ऑफ इंडस्ट्रियल डिमांड. रिजुविनेट वाटर बॉडीज, प्रोटेक्ट फ्रेश वाटर बॉडीज. आई विल एक्सप्लेन यू दिस, प्लीज़ डोंट वरी. लेट मी जस्ट टेक यू हेयर. सो रिफॉर्म्स हुए कुछ अमृत 2.0 के अंदर. बोला गया कि कुछ मैंडेटरी रिफॉर्म्स होंगे और कुछ इंसेंटिव बेस्ड रिफॉर्म्स किए जाएंगे. सबसे पहले मैंडेटरी रिफॉर्म्स में था स्ट्रेंथनिंग प्रॉपर्टी टैक्स रिजीम एंड इंश्योरिंग यूजर चार्ज फॉर वाटर एंड सीवरेज, दैट इज कॉस्ट रिकवरी. तो ये मैंडेटरी रिफॉर्म्स किए गए. कुछ इंसेंटिव बेस्ड रिफॉर्म्स कैरी किए गए, फॉर एग्जाम्पल रिजुविनेशन ऑफ वाटर बॉडीज, देन रिड्यूसिंग नॉन रेवेन्यू वाटर टू 20%, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है, रीयूज़ करना है हमें 20% ट्रीटेड वेस्ट वाटर का, और जो इंडस्ट्रियल डिमांड है उसका हमें यूज़ करना है ट्रीटेड वेस्ट वाटर फॉर 40% इंडस्ट्रियल डिमांड. डेवलप करना है पार्क्स, ग्रीन स्पेसेस, इम्प्रूव अर्बन local body credit rating and market access and GIS based master planning and efficient land use. So आपको याद रखना है कि क्या मैंडेटरी रिफॉर्म्स किए गए, प्रॉपर्टी टैक्स रिजीम एंड यूज़र को हमें चार्ज करना है फॉर वाटर एंड सीवरेज. उसके बाद ये सारे इंसेंटिव रिफॉर्म्स थे. तो 40% इंडस्ट्रियल डिमांड के लिए ट्रीटेड वेस्ट वाटर यूज़ करना है, 20% ट्रीटेड वेस्ट वाटर को रीयूज़ करना है, नॉन रेवेन्यू वाटर को 20% तक कम करना है, और उसके बाद पार्क्स डेवलप करना है, मास्टर प्लानिंग, रिजुविनेशन ऑफ वाटर बॉडीज that have to take place. Now here the same thing was written. यहाँ पे 20% and 40% of industrial demand. Then rejuvenate water bodies, protect करना है fresh water bodies को. Then water supply का coverage अब 100% हो गया है, and sewerage coverage is in 500 अमृत cities. राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू फंडिंग पैटर्न. तो इसका फंडिंग पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है. यू हैव टू रिमेंबर यूनियन टेरिटरीज के लिए इट इज़ 100%. फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट इट इज़ 90:10. फॉर सिटीज़ विद पॉपुलेशन लेस देन 1 लाख रुपीज़ इट इज़ 50% सेंट्रल शेयर. 1 लाख से 10 लाख के बीच में 33% सेंटर का शेयर है, एंड सिटीज़ विद पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख रुपीज़ 25% सेंटर का शेयर है. सो प्लीज़ जस्ट रिमेंबर दिस पार्ट ऑल्सो. 3 इंस्टॉलमेंट में पैसे दिए जाएंगे, 20%, 40% एंड 40%. सेकेंड इंस्टॉलमेंट रिलीज़ की जाएगी ओनली इफ मैंडेटरी रिफॉर्म्स जो था दैट इज़ प्रॉपर्टी टैक्स एंड यूज़र चार्जेस दे आर इम्प्लीमेंटेड, तब सेकेंड इंस्टॉलमेंट को रिलीज़ किया जाएगा. नाउ मिशन कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि वाटर सप्लाई होना चाहिए, सीवरेज एंड सेप्टेज, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज शुड बी देयर, अर्बन ट्रांसपोर्ट शुड बी देयर, ग्रीन स्पेसेस, कैपेसिटी बिल्डिंग. आई थिंक दिस इज सेल्फ अंडरस्टूड. यू मे रीड बाय योरसेल्फ एंड आई विल नॉट वेस्ट टाइम इन making you understand those things that are self understood. So now let's move on to our fourth scheme, that is प्रधानमंत्री स्वानिधि scheme, and this is important because इस scheme में कुछ update किया है, so that part becomes very important for us to study. This scheme was initially launched in June 2020 आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर, and it is a central sector scheme, यानी 100% it is funded by central government. It is under Ministry of Housing and Urban Affairs. Implementing agency is SIDBI, and now also Department of Financial Services with support from banks and financial institutions are implementing this scheme. But SIDBI still remains, right? Now, what is this scheme, और इस scheme का क्या objective है? This scheme is focusing on street vendors. So we are wanting to enhance collateral free working capital loans in 3 tranches. This I'll make you understand in later slides.
हम चाहते हैं कि हम उन्हें टाइमली रीपेमेंट अगर वो कर रहे हैं तो इंसेंटिवाइज भी करें विद 7% इंटरेस्ट सब्सिडी। हम डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करना चाहते हैं, एम्पावर करना चाहते हैं वेंडर्स विद डिजिटल टूल्स, फाइनेंशियल लिटरेसी, credit access and entrepreneurship training. Now, who all are eligible under this scheme? The scheme is valid only in states and UTs that have notified rules and schemes under Street Vendors Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending Act of 2014. Meghalaya is an exception, but Meghalaya may participate under its own state Street Vendors Act. नाउ एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें तो वेंडर्स जिनके पास सर्टिफिकेट है वेंडिंग या आईडी कार्ड इशू हुआ है वो एलिजिबल है। वेंडर्स दैट आर आइडेंटिफाइड इन सर्विस बट उनको सर्टिफिकेट्स इशू नहीं हुआ है, उन्हें प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला है तो वो भी एलिजिबल है। जो वेंडर सर्वे के भी बाहर है बट उन्हें लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिल गया है फ्रॉम अर्बन लोकल बॉडीज़ वो भी इंक्लूडेड है। एंड वेंडर्स इन पेरी अर्बन और रूरल एरियाज लिंक टू अर्बन लोकल बॉडी लिमिट्स आर ऑल्सो एलिजिबल अंडर दिस स्कीम। नाउ टारगेट बेनिफिशियरीज है हमारे 1.15 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स इंक्लूडिंग 50 लाख न्यू एंट्रेंट्स। कवरेज हमने एक्सपेंड कर दिया है टू स्टैट्यूटरी टाउन्स, सेंसस टाउन्स, पेरी अर्बन टाउन्स एंड सेमी रूरल एरियाज इन अ फेस्ड एक्सपेंशन। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर रिविजन हुआ है इन 2025 लोन स्ट्रक्चर में, सो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो 3 ट्रांचेस में लोन्स दिए जाएंगे। तो फर्स्ट लोन पहले 10,000 रुपीज़ था, अब इसे 15,000 रुपीज़ कर दिया है। सो फर्स्ट ट्रांच ऑफ लोन वुड बी अप टू 15,000 रुपीज़। सेकेंड लोन वुड बी अप टू 25,000 रुपीज़, पहले 20,000 था। देन थर्ड लोन वो अनचेंज है, दैट इज़ अप टू 50,000 रुपीज़। नाउ टेन्योर भी आपको याद रखना है, फर्स्ट लोन का टेन्योर इज़ 12 मंथ्स, सेकेंड लोन का टेन्योर इज़ 18 मंथ्स एंड थर्ड लोन का टेन्योर इज़ 36 मंथ्स और 3 ईयर्स। अगर वो फर्स्ट लोन का टाइमली रीपेमेंट करेंगे तो सेकेंड ट्रेंच ऑफ लोन के लिए एलिजिबल बन जाएंगे एंड देन लोन वुड बी गिवन टू देम। देयर वुड बी नो पेनल्टी ऑन अर्ली रीपेमेंट एंड सम की फीचर्स आर कि उन्हें इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी ऑफ 7% पर एनम। डिजिटल कैशबैक मिलेगा अप टू 1,600 एनुअली रुपीज़ फॉर रिटेल एंड होलसेल डिजिटल ट्रांजेक्शन्स। देन आफ्टर रीपेमेंट ऑफ सेकेंड लोन वेंडर्स को इंस्टेंट रिजॉल्विंग क्रेडिट मिलेगा फॉर बिजनेस एंड पर्सनल नीड्स। उन्हें कैपेसिटी बिल्डिंग यानी ट्रेनिंग मिलेगी फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल टूल्स, मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह में। देन ट्रेनिंग ऑन हाइजीन एंड फूड सेफ्टी वुड ऑल्सो बी देयर विद FSSAI, दैट इज़ फूड सेफ्टी and Standard Authority of India. Right, so these are the features of this scheme. Now Swanidhi से समृद्धि यानी मंथली लोक कल्याण मेलास वुड बी देयर जहाँ पे सारी गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम फॉर वेंडर्स एंड फैमिलीज होंगी। दैन इट इज़ लिंक टू स्कीम सच एज प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जनधन योजना एंड ऑल ऑफ दी स्कीम्स। अवार्ड्स मिले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल 2023 में प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल्सो इन 2022 सिल्वर अवार्ड। Now our last scheme is Swachh Bharat Mission Urban and Swachh Bharat Mission Urban 2.0. This scheme was originally launched in 2014 on Gandhi Jayanti by Pradhan Mantri Modi. It is also a centrally sponsored scheme. Ministry of Housing and Urban Affairs. Tenure था 2014 से 2019 यानी 5 years. Financial outlay था 62,000 रुपीज़। ऑब्जेक्टिव था इस स्कीम का कि स्वच्छ भारत रखना है यानी ओपन डेफिकेशन को एलिमिनेट करना है, 100% साइंटिफिक मैनेजमेंट होना चाहिए म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का, बिहेवियरल चेंज लाना है लोगों में, मैनुअल स्केवेंजिंग को ख़त्म करना है। बट फिर अर्बन 2.0 आया इन 2021 एंड दिस स्कीम इज़ ऑन गोइंग स्कीम 2021 टू 2025-26। इट इज़ ऑल्सो अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड सारे स्टैट्यूटरी टाउन्स इन इंडिया आर कवर्ड। फाइनेंशियल आउटले इज़ 1,41,600 करोड़ रुपीज़। नाउ इसका जो कंपोनेंट है इट इज़ ऑल्सो थोड़ा सिमिलर टू व्हाट वी वर स्टडिंग इन previous scheme. So first of all, UTs without legislature 100%, for North Eastern 90:10, for UTs with legislature 80:20, cities with more than 10 lakh population 25:75, cities with 1 to 10 lakh population 33:67 and cities with less than 1 lakh population 50:50 का सपोर्ट दिया जाएगा। देन व्हाट आर द मिशन ऑब्जेक्टिव्स? तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ऑब्जेक्टिव इज़ 100% साइंटिफिक प्रोसेसिंग करनी है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की। कॉम्पोनेंट्स होंगे सेग्रीगेशन एट सोर्स, डोर टू डोर कलेक्शन, सेपरेट ट्रांसपोर्ट, यूज़र फ्री, बल्क वेस्ट जनरेटर रूल्स होंगे। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट्स वुड बी सेटअप, मैकेनाइज्ड स्वीपर्स इन NCAP cities and more than 5 lakh population cities, remediation of legacy dump sites that is green zones, फिर सस्टेनेबल सैनिटेशन करना है यानी ODF
स्टेटस मेंटेन करना है इन ऑल सिटीज़. न्यू कंस्ट्रक्शन वुड बी देयर, तो इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेट्रिन्स, कम्युनिटी पब्लिक टॉयलेट्स, यूरिनल्स वुड बी देयर. रेट्रोफिट करना है इन सैनिटरी टॉयलेट्स का. यूज वाटर मैनेजमेंट इज़ अ न्यू फीचर, यानी कि नो ट्रीटेड सीवेज टू बी रिलीज इनटू एनवायरनमेंट. ग्रे वाटर एंड ब्लैक वाटर का मैनेजमेंट करना है. रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर इन स्मॉल सिटीज दैट इज़ विथ लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन. फिर बिहेवियरल चेंज लेकर आना है, जन आंदोलन करना है फॉर स्वच्छता. कैपेसिटी बिल्डिंग यानी अर्बन लोकल बॉडीज़ को स्ट्रेंथन करना है टू प्लान एंड इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट्स. फ्रॉम दिस प्लीज़ रिमेंबर कि ये जो कंपोनेंट है दैट इज़ मैकेनाइज स्वीपर्स इन एनसीएपी सिटीज़ एंड मोर देन 5 लाख पॉपुलेशन सिटीज़ इज़ इंपॉर्टेंट. देन रीयूज़ करना है में ट्रीटेड वाटर इन स्मॉल सिटीज़ दैट इज़ विथ लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन. नाउ इसका फेज़ 1 था 2015 में. कवरेज वॉज 100 सिटीज़ विथ मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन. नाउ फेज़ 2, दिस इज़ अमृत, आई थिंक इट इज़ रॉन्ग, प्लीज़ अवॉइड दिस. नाउ की फीचर्स क्या है? ओवर 3.5 lakh new toilets would be there, aspirational toilets at tourist spots etc. Solid waste management, 3R principle would be there, that is reduce, reuse and recycle. So it is based on 3R principle, that is reduce, reuse and recycle. Then urban rural convergence यानी cluster based infrastructure serving group of urban local bodies. Workers welfare पे ध्यान दिया जाएगा. Safety kits and PPE for sanitation would be provided. Annual ODF certification would take place. Garbage free cities star rating by third party assessment would be there, and funding only for new projects, not old or incomplete ones would be there. यानी न्यू प्रोजेक्ट्स को हमें फंड करना है. सो दैट्स इट विद टुडेज क्लास. आई होप आपको आज की क्लास की सारी स्कीम्स एंड मिनिस्ट्रीज समझ आई हो. माई एम इज़ टू कवर इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑल इंपॉर्टेंट स्कीम्स एंड मिनिस्ट्री. आई होप यू आर लाइकिंग दिस सीरीज. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कवर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस स्कीम्स, and then I'll take up scheme based on your discussion that was happening in the Telegram group channel. So based on that, जितने लोगों ने जो scheme ministry को ज़्यादा बोला होगा, I'll take that ministry. I hope you are liking the session. Please like, share and comment, and thank you for watching.